Hi everyone, welcome to the Indo Eco Affairs. So today I'm going to discuss notification number 6 upon 2024. अब देखो इसके अंदर हम और क्या डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 158A which was inserted by Finance Act 2023 and the rules which was inserted by way of the notification number 38 upon 2023 which has inserted rule 163. अब इसमें देखो नोटिफिकेशन में आया क्या है। इस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने एक सिस्टम को ऑथराइज करा है डेटा शेयर करने के लिए। इसकी क्रूशियल डिटेल में अभी हम समझेंगे एंड इसकी लिंकेजेस भी अभी हम कंसीडर करेंगे। सो बिफोर गोइंग थ्रू दिस नोटिफिकेशन वी नीड टू हैव अ क्लियर गाइडलाइंस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। First, I'm going to discuss what is a public tech platform and certain background, because what happens that we just only surrounded by the notification or circular or the instruction, but just we have to go beyond that. So first I explain what is public tech platform for frictionless credit, what it is and why the information of the GSTR1 is being shared with such kind of a system. So let's start. देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये आफ्टर ऑल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म सिस्टम है क्या और ये आया ही क्यों है। अब देखो जब कोविड आया था तो ये फील हुआ था कि डिजिटलाइजेशन इन द बैंकिंग इट हैज टू बी देयर। द बैंकिंग शुड नॉट बी pertains to the bank, it should be everywhere. सो अब आरबीआई ने क्या करा था, स्टेटमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रेगुलेटरी पॉलिसी 10 अगस्त 2023 को एक सिस्टम बनाया विच इज कॉल्ड पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। अब इसको बनाने वाला था आरबीआई इनोवेशन हब। आरबीआई इनोवेशन हब क्या है, दैट इज अ सेक्शन 8 कंपनी ऑफ द आरबीआई विच इज फॉर्म्ड इन 2020। अब उन्होंने एक मॉडल, एक क्या होता है वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ऐसे सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से इनोवेटिव सॉल्यूशन, कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम और एक्सेसिबल बना सकें थ्रू द डिजिटलाइजेशन। तो उसी का ही एक इनोवेशन है। तो बहुत सारे इनोवेशन हब सेटअप हो चुके हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आरबीआई ने भी एक आरबीआई इनोवेशन हब बनाया जिसके अंदर उन्होंने एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है ताकि हमारी क्रेडिट एक्टिविटी और जो हमारा कॉस्टिंग है वो कम हो सके, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड दैट कि डिजिटलाइजेशन इज प्रोसीडिंग रैपिडली। So the digital or let's also they have also embraced the concept of the digital public infrastructure which will encourages the bank, fintech, that is a financial technology companies, a startup to create an innovative solution in the payment, credit and other activities. There are so many fintech which have developed and they are processing or they are in the process of developing so many other product as well. अब इससे होगा क्या, लेकिन अब इससे क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप कोई भी अगर आप लोन लेने जा रहे होते हो देन यू हैव टू they have to identify the credit appraisal whether the person is his credit worthiness, right? So available with the different entities. अब ये सारा डेटा क्या होता है, डिफरेंट एंटिटीज के ऊपर सेग्रीगेटेड होता है। कुछ डेटा गवर्नमेंट के पास है, कुछ डेटा अकाउंट एग्रीगेटर के पास है, सच एज Amazon, Flipkart and so many other, Paytm. These are the account aggregators. There are certain banks, credit information companies such as CRISIL and others, and digital identity authority. But these are separate systems which are governed by the different law, therefore creating a hindrance in the frictionless credit. That means we are going to provide a loan within a second, but we can't because we don't have the information, and each and other information is governed by the different law and different amendment needs to be made. So this is the reason the public tech platform would enable the delivery, but its ultimate objective is to deliver frictionless credit by facilitating seamless flow of the required digital information to the lenders. That means the person who is जो अब लोन दे रहा है उसके पास इंफॉर्मेशन तो हो विच इज ऑथेंटिक। सो इसको हम इन्होंने क्या करा है, डिजिटल इन्फो अभी एक पायलट वर्जन लॉन्च किया है, अभी 100% नहीं है, मतलब इनिशियल के अंदर ये कुछ कैटेगरी और कुछ प्रोडक्ट को ही कंसीडर कर रहे हैं। दैट इज दे आर फोकसिंग ऑन द किसान क्रेडिट कार्ड लोन विच इज अप टू 1.6 लाख पर बोरोवर्स, डेयरी प्रोडक्ट, एमएसएमई लोन्स, personal loans and home loans through the participating banks. Up the participating banks there are certain. Up they are also linkaging with the Aadhaar, land records, satellite data, PAN validation, transliteration, Aadhaar e-signing and the account aggregation by the account aggregator.
Based on learning they would increase the scope. So these are the things which are covered. यानी कि अगर आपका कोई भी सर्विस है which is covered under this, generally MSME के ऊपर impact ज़्यादा है, then they can obtain the information through the GST which is now effective. This is the platform which was launched in August 2023, that is 17 August 2023. Accordingly, the recent changes were made by way of insertion of section 158A in the GST Act. Now, अब देखो 158A क्या बोलता है? So simple, that's a non-obstante for section 133, 152 and 158. 133 सिंपल ये बोलता है कि आप कंसेंट, जनरली एक पब्लिक ऑफिसर जो है वो कंसेंट शेयर नहीं कर सकता. अगर वो डेटा इकट्ठा भी करता है तो वो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन कंसेंट के बेसिस पे शेयर कर सकता है, सेक्शन 158 बोलता है. बट दीज आर मस्ट बी फॉर द ड्यूटीज और सच अदर सिस्टम विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये सेक्शन 152 बोलता है. अब इसको ओवरराइडिंग करते हुए वो बोल रहा है बट दैट इज सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, यानी कि कंसेंट नीडेड है. सबसेक्शन 2 में कंसेंट की बात करता है. अब डेटा कौन कौन सा शेयर करेगा जीएसटी पोर्टल, अब ये समझते हैं. जो अथॉरिटी मिली है एक्ट के अंदर वो मिली है, जो भी आपने जीएसटीआर 1 फाइल करी है, जो भी आपने 39 के अंदर लाइबिलिटी पे करी है या रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स हैं, दैट कैन बी शेयर्ड विद द बैंक और द पार्टिसिपेटिंग लेंडर्स, और द एनुअल रिटर्न दैट इज 99C, और ईवे बिल का डेटा, इनवॉइसेस, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द कंसेंट. अब देखो इसमें कंसेंट किस किस की चाहिए, सप्लायर की भी चाहिए और रिसिपिएंट की भी चाहिए. पहली कंसेंट सप्लायर ही देगा, और अगर जहाँ पे रिसिपिएंट दैट मीन्स जिस क्लाइंट को, अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी क्लाइंट को सर्विस दी है तो GST-1 के अंदर वो डेटा होता है. सो वी हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट फ्रॉम द रिसिपिएंट एज वेल, एंड पोस्ट दैट वी वुड शेयर द कंसेंट ओवर द पोर्टल. अब इससे क्या होगा, मान के चलते हैं हमने तो एक इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने क्लाइंट ने या फिर हमारे कुछ क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन हमारी दे दी कि दीज आर आवर सप्लायर्स, बट हमने अभी तक वो इनवॉइस ही नहीं दिया. तो उससे क्या होगा कि हो सकता है लायबिलिटी अराइज हो. तो इन्होंने एक सबसेक्शन 3 में ये बोला, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, नो एक्शन शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट लायबल या कॉमन पोर्टल लायबल नहीं होगा फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लायबिलिटी अराइजिंग, बट हाँ दैट इज ऑल्सो गिव द एश्योरेंस दैट नो इम्पैक्ट ऑन द लायबिलिटी टू पे द टैक्स. अगर इन्फॉर्मेशन शेयर हुई देयर वुड बी, इट वुड नॉट कास्ट एनी लायबिलिटी ऑन द पर्सन. That is only subject to the other procedure in the law. And accordingly, Rule 163 was inserted by notification number 38, which is also amended by the notification number 12/2024. This is the amendment which is made. It is only just insertion of form GSTR 1A. अब कौन कौन सी डिटेल्स हैं वो आपके 163 रूल के अंदर स्पेसिफाइड है. दैट इज GSTR 1, 3B 1 and REG 1, that is a registration and other details. So this is the amendment that was made, and all about section 158A, and I have also linked with the brief background why it was formed. So hope you have understood. Thank you so much for listening.